friends, my name is Preeti Patil Jagdane and I am presenting before you the government schemes. Let's have a look toward our first news. First scheme is about remission of duties or taxes on export product, that is RODTEP scheme. What is RODTEP scheme? The RODTEP scheme was launched in 2020 to boost the export in India in international market. Under the scheme, a mechanism will be created for repayment of levies, taxes or duties at central, state and local level. Prior to scheme, the reimbursement were not done under any mechanism. ये स्कीम आपको जैसे नाम में ही दिखा है कि रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, नाम से ही पता चलता है कि दिस स्कीम इज टू बूस्ट द एक्सपोर्ट्स एंड यहाँ पे आपको ड्यूटीज और आपकी जो टैक्सेस है उसमें रिमिशन मिलेगा, मतलब रीपेमेंट ऑफ लेवीज, ड्यूटीज और टैक्सेस में होगी लोकल और सेंट्रल स्टेट लेवल पे. फाइन फ्रेंड्स, विल मूव टू फॉरवर्ड. Which scheme is replaced by RODTEP scheme? Firstly, the merchandise export from India scheme was there. It was introduced to offset infrastructural inefficiency and associated cost involved in exporting goods that are produced in India. अब इसमें देखो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बॉटलनेक थी ये स्कीम में, जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम थी, और जो कॉस्ट था एक्सपोर्ट का ये स्कीम में बढ़ जाता था. मतलब इंडियन जो मार्केट में जो भी गुड्स बनते हैं, हम जो एक्सपोर्ट करेंगे वो जो गुड्स है वो कम्पिटिटिव नहीं रहते थे इस स्कीम में. ओके, तो इसलिए हमने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को रिप्लेस कर दिया. RODTEP scheme के बारे में जानते हैं. The government of India recently announced that the benefit of remission of duties and taxes on exported products scheme is to extended to all goods. Let's have a look toward the picture. The new initiative to keep the Indian economy on fast track. Okay, measure to boost the export, financial support, the remission of duties or taxes on export product to replace MIES from 1st of January 2020. The change from MIES to RODTEP to incentive export more than all current scheme. The improved incentive will cost about rupees 50,000 crore annually. Fully electronic method for income tax credit by September end. मतलब ये स्कीम को रिप्लेस करके हम क्या क्या कर सकते हैं, इंसेंटिवाइज कर सकते हैं एक्सपोर्ट को. फाइन, और उससे हमें कितना इंसेंटिव मिलेगा? 50,000 करोड़ इज ह्यूज अमाउंट, और फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक मेथड फॉलो की जाएगी ये स्कीम में. ओके, अब बेनिफिट क्या होंगे इस स्कीम के? फर्स्टली, टाइमली एडॉप्शन ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होगा. सेकेंड, न्यू वर्किंग ग्रुप ऑन स्टैंडर्ड होगा. थर्ड, अफोर्डेबल टेस्टिंग होगी. फोर्थ, क्विकर जीएसटी रिटर्न मिलेगा. फिफ्थ, लेस टर्न आउट टाइम एट द एयरपोर्ट एंड पोर्ट्स होंगे. फाइन, और सिक्स्थ एंड लास्ट दैट इज फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे. हाउ RODTEP स्कीम WTO कंपाइलेंट, मतलब प्रीवियस जो हमारी स्कीम थी MIES, तो वो जो स्कीम थी वो WTO कंपाइलेंट नहीं थी फ्रेंड्स. ओके, तो RODT स्कीम विल coordinate with WTO organization to reduce the post-production transaction cost for the exporter. In order to achieve this, the RODTEP scheme implementation measure must provide production-oriented process. This is according to WTO rule. This will help to boost the production of MSME. मतलब ये स्कीम में क्या किया गया है कि WTO से कोऑर्डिनेट करके रूल को, मतलब WTO कंपाइलेंट बनाया गया है. जो भी पोस्ट प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा एक्सपोर्ट का वो रिड्यूस किया जाएगा, और इससे क्या होगा कि इम्प्लीमेंटेशन जो मेजर है वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस पे डिपेंड है. फाइन, और इससे जो मेजर बूस्ट मिलेगा वो प्रोडक्शन ऑफ MSME सेक्टर को मिलेगा. Also under the scheme, the indirect taxes are consumed in production process. This is also consistent with WTO. In simple words, according to WTO principle, indirect taxes on export shall be reimbursed to boost the export. मतलब indirect taxes जो भी है एक्सपोर्ट के वो रीपेमेंट करके मिलेंगे. इससे क्या होगा? आपके एक्सपोर्ट में बूस्ट आएगा. What are the benefits of RODTEP scheme?
First benefit is under the scheme, the exporter of India will meet the international standard for the export. This will boost the value of Indian products in the international market. अभी हमने देखा कि WTO की कंपाइलेंट रूल है, तो क्या है, इंटरनेशनल जो भी स्टैंडर्ड है वो हम मीट कर पाएंगे. This is being achieved through certification and affordable testing that will be provided under the scheme rather than relying on the international organization. By replacing MEIS, RODTEP scheme created an automated route for input tax credit. मतलब ये जो हमने रिप्लेस किया है प्रीवियसली स्कीम, तो ये स्कीम में क्या होगा कि ऑटोमेटेड रूट होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने के लिए. द इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोवाइडेड टू सेट ऑफ द टैक्सेस पेड ऑन परचेस ऑफ कंज्यूमेबल raw material that used in manufacturing goods and services. Therefore, it will help to avoid double taxation. हमने देखा कि जीएसटी में भी वैसे ही कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है हमको, ठीक है. जो भी हमसे डबल टैक्स लिया गया है तो वो हमारे अकाउंट में, मतलब जीएसटीएन का जो नेटवर्क है उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट करके आता है कि उसे डबल टैक्सेशन नहीं बैठता है प्रोड्यूसर को. फाइन. इससे क्या होगा कि उनकी जो कॉम्पिटिटिव प्राइस है वो कम रहेगी, जो भी प्राइस है कम रहेगी क्योंकि उस पर टैक्स डबल नहीं लग रहा है. फाइन. तो वो क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में भी उनका प्राइस कम रहेगा, तो वो जो प्राइस होगी वो कंपेटिटिव होगी बाकी के देशों के लिए. फाइन. बिग बूस्ट टू एक्सपोर्ट. द स्कीम ऑफ रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट. फर्स्ट, mechanism to be created for taxes, duties, levies at center. We have seen this. State, local currently not being refunded. अभी तो currently refund नहीं है, लेकिन ये स्कीम से होगा. Will make Indian export cost competitive in international market and boost employment generation. इससे employment generation भी बढ़ेगी क्योंकि हमारा ज्यादा से ज्यादा माल एक्सपोर्ट होगा, कॉस्ट कंपेटिटिव रहेगी तो हमारा मार्केट बढ़ेगा और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा. Existing MEIS to be shifted to RODTEP with proper monitoring and audit mechanism. Scheme to be implemented end to end digitization. मतलब यहाँ पे डिजिटल यूज ज्यादा से ज्यादा होगा इस स्कीम में. अब देखो कि ये स्कीम टू रिफंड टैक्सेस नॉट करंटली रीइंबर्स्ड ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स. अभी जो मैंने बताया वही है, अलग पिक्चर्स में दिखाया.